तत् अभिद्रवत् उद्भिक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासदुद्रुहे भीतो दिक्षु प्राणापरीप्सया तत् अभिद्रवत् उद्भिक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासदुद्रुहे भीतो दिक्षु प्राणापरीप्सया तद् अभिद्रवत् उद्भिक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासादुद्रुहे भीतो दिक्षु प्राणपरीक्षया तद अभिद्रवत् उद्भिक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासदुद्रुहे भीतो दिक्षु प्राणापरीप्सया तद अभिद्रवत् उद्भिक्ष्य स्वप्रयासं न निष्फलम् दुर्वासदुद्रुहे भीतो दिक्षु प्राणापरीप्सया तत् अभिद्रवत् उद्भिक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम् दुर्वासदुद्रुहे भीतो दिक्षु प्राणापरीप्सया that of that disc Abhidravan moving toward him Udvikshaya after seeing Swaprayasam his own attempt Cha and Nishphalam having failed Durvasaha Durvasa Muni Dudruve began to run Bhitaha full of fear Dikshu in every direction Prana Paripsaya with the desire to save his life. Upon seeing that his own attempt had failed and the Sudarshana Chakra was coming toward him, Durvasa Muni became very frightened and began to run in all directions to save his life. As the blazing flames of the forest fire pursue a snake, the disc of the Supreme Personality Godhead began following Durvasa Muni. Durvasa Muni saw that the disc was almost touching his back, and thus he ran very swiftly, desiring to enter the cave of the Sumeri mountain. Just to protect himself, Durvasa Muni fled everywhere, in all directions, in the sky, on the surface of the earth, in the caves, in the ocean, on the different planets, the rulers of the three worlds, even on the heavenly planet. But wherever he went, he immediately saw following him the unbearable fire Sudarshan Chakra. With a fearful heart, Durvasa Muni went here and there and seeking the shelter. When he could not find no shelter, he finally approached Lord Brahma and he said, "O my Lord, O Brahma, kindly protect me from the blazing Sudarshan Chakra sent by the Supreme Personality of Godhead." Lord Brahma said at the end of the Dviparartha, when the pastimes of the Lord came to an end, Lord Vishnu, by the flick of his eyebrows, vanquishes the entire universe, including the places of residence. Such personalities as me, Lord Shiva, Daksha, Bhrigu, similar great saints of which they are the head, and also the rulers of the living entities, the rulers of human society, rulers of demigods, all of us surrender to that Supreme Personality God, Lord Vishnu, bowing our head to carry out his orders for the benefit of all living entities. पढ़ लो अम्मी हिंदी में पढ़ लो. ब्रह्मा जी ने कहा द्वीप पदार्थ के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु अपनी भ्रुकुटी के टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं. मैं तथा शिव जी जैसे महापुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं.
भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु सर्वहर श्याम। जब भगवान विष्णु का काल के परम नियामक के रूप में आते हैं तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। दूसरे शब्दों में सारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त है। यह तो शरणागत जीव का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करे, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी ने भगवान के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। When Durvasa was greatly afflicted by the blazing fire of Sudarshan was thus refused by Lord Brahma, he tried to take shelter of Lord Shiva, who always reside on his planet known as Kailasha. Lord Shiva said, "My dear son, I, Lord Brahma, other demigods who rotate within the universe under the misconception of our own greatness, cannot exhibit any power to compete with the Supreme Personality Godhead. For innumerable universes and the inhabitants come into existence and are enlightened by simple direction of the Lord." शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और संहार होता रहता है। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भी असंख्य हैं। ये सभी भगवान के सर्वोच्च निर्देशानुसार इस भौतिक जगत के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे कोई भी भगवान की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। शिव जी ने भी दुर्वासा की रक्षा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शिव जी स्वयं भी भगवान द्वारा भेजे गए सुदर्शन चक्र की किरणों के अधीन। Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshakarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna, welcome everybody. We are in Bhagavatam, 9th canto, 4th chapter and 55th shloka. Pratyakato. Hare Krishna. Pratyakyato virinchena Vishnu chakro patapitaha Durvasa sharanam yataha Sarvam kailashavashisham Sarvam kailasavasinam. When Durvasa was greatly afflicted with the blazing fire of Sudarshan Chakra, was thus refused by Lord Brahma, he tried to take shelter of Lord Shiva, who always resides on his planet known as Kailasha. So Durvasa Muni को इधर सांप से कंपेयर करा गया। इतने बड़े संत होने के बावजूद भी, इतनी तपस्या करने के बावजूद भी उनको एक सर्प का नाम दे दिया गया। बहुत ही मतलब अपमान है, करेक्ट, बोलो तो सांप जैसे। लेकिन
उसके काम तो सांप जैसे ही थे ना। कभी कभी लोग अलग तरह से सोचते हैं, बोलते हैं नहीं, जब तक तुम सांप को प्रॉब्लम नहीं करोगे नहीं काटेगा, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि सांप का जहर बढ़ता रहता है जैसे वो, और उसको वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्नेक इज एनवियस। एनवियस मतलब जाके काट देता है। इसलिए एनवियस लोगों को, जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उसको सांप से कंपेयर करा जाता है, ठीक है ना। और दुर्वासा मुनि देखो इतने बड़े तपस्वी, लेकिन उनको ऐसा अपमान, सांप का जैसा उसको नाम दे दिया, सांप। और बोला जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सांप फंस जाता है बेचारा, वो कुछ नहीं कर पाता। जानवर तो भाग लेते हैं, वो तो ही मर जाता है। तो सिमिलरली जब भक्ति की शक्ति के सामने जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो भी जल जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली एक भक्त कभी भी दूसरे भक्त को सुपरसीड नहीं करना चाहता, इसलिए भक्त के बीच में ईर्ष्या नहीं आती है, बिकॉज वो तो भक्त दूसरे भक्त की सेवा करना चाहता है। कह रहे दास दासा अनुदासा। जैसे देखिए आपका चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमेशा क्या लिखते हैं, आप अगर किताब पढ़ें, मैं तो चैतन्य भागवत जो लिखी है वृंदावन दास ठाकुर उनका सेवक, मैं उनको विनती करता हूँ कोई अपराध ना हो जाए, मैं भी उसी सेम किताब का उल्लेख कर रहा हूँ उनके लिए, लेकिन उनके कुछ रेमिनेंट्स, उनका कुछ प्रसाद, उनको किताब थोड़ा बड़ी हो रही थी तो कुछ उन्होंने लीलाएं छोड़ दी, मैं उस पर व्याख्या करना चाहता हूँ। कभी कभी बोलते हैं ये लीला इधर नहीं पढ़ना, उधर पढ़ लेना, चैतन्य भागवत में लिखा। कभी भी आप देखेंगे बहुत ध्यान, वो सुपरसीड नहीं कर रहे। भक्त हमेशा कभी दूसरे भक्त से कॉम्पीट नहीं करता, वो कंपटीशन का तो एरिया है ही नहीं भक्त का। कंपटीशन तो मृत्यु लोक में है, एक चूहा दूसरे चूहे से कॉम्पीट करता है, उसको बोलते हैं इसलिए रैट रेस, कैट रेस, डॉग रेस। ये दुनिया में ये लोग भागते हैं ना 100 मीटर, ये कुत्तों का भी रेस कराया जाता है, ऐसे को डॉग रेस, चूहों का भी कराया जाता है लैब में, रैट रेस। लेकिन भक्त रेस कभी सुना नहीं, कभी नहीं होता। एक भक्त दूसरे भक्त से आगे जाने की कभी इच्छा नहीं रखता। इन एक तरह से जैसे गोलोक धाम में गोपीज हैं, वो उनका अलग है, वो कृष्ण का सेवा किया, चलो हम आपसे अच्छा करेंगे सेवा, लेकिन कभी भी दिल में बुरा नहीं है दूसरे गोपीज के लिए। वो आपने कृष्ण को आज इतना सुंदर हार दिया, आप देखो हमारा देखो कल, लेकिन पूरा इज्जत से, खुशी से। प्रभुपाद देवी हमारे इस्कॉन मूवमेंट में कंपटीशन कराते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, लेकिन उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरा तरह का कंपटीशन है। तो यहाँ पे आप देखिए जनरली इतना दुर्वासा मुनि का जो घमंड, उसका रीजन है कंपटीशन। प्रभु जी बोलते हैं सब लोग इस दुनिया में धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो भगवान को दिखाना चाहते, देख तेरे से कुछ मतलब नहीं कितना धन मैंने इकट्ठा किया, ऐसा ये क्या काम है ये भाई, ये तो भौतिक जग काम है। हम लोग कभी भी हमारा नेचर रहता है कि वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्ण। क्या कंपटीशन करेंगे हम, कृष्ण के एक एक क्षण में उनकी कृपा पे जी रहे, उनसे क्या कंपटीशन करेंगे। लेकिन स्वभाव ऐसा ही है, सब लोग भगवान से कॉम्पीट करने आए। इंद्र को दिखता है कोई आदमी थोड़ा तपस्या कर, अरे रे मेरा सीट ना चला जाए, क्यों भाई तुम्हें सीट से, वो सीट क्यों चाहिए उसको, वो सीट भगवान से कॉम्पीट करने के लिए चाहिए। देखो तुम ऐश्वर्य कर रहे हो वैकुंठ में, नारायण जी देखो मेरा ऐश्वर्य, मेरे वहां भी अप्सरा डांस कर रही है ना। एक वो दिल में अभी शुद्ध भक्ति नहीं है, थोड़ा कंपटीशन की इच्छा है, इसलिए कोई और आगे आ जा, अरे मैं नारायण का कंपटीशन दे रहा हूं, तू कहां से आ गया, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कंपटीशन भक्त को भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इस समाज में हम तो कंपटीशन से ही आए। श्री राधा गोविंद की, तो हम तो इस समाज में आए जहाँ कंपटीशन चल रहा है, तो वो हमारा स्वभाव है, गया नहीं है। तो जब तक हम हरि नाम की मधुरता नहीं चखेंगे, ये नहीं जाने वाला। जब आप तो ना विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः
रसवर्ज रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम रसवर्ज रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिल जाता है हम इससे मुक्त हो जाते हैं, बहुत शांति मिलता है। एक्चुअली हम कंपटीशन उससे ही आए, जब भक्तों के संग में आते हैं इधर भी वही चलता रहता, मन उसके पास ही है मेरे पास नहीं है। शुरू में ऐसे ही तो उधर ही है ना, अभी तो एक दिन में ऐसा थोड़ी ड्रेस पहना तो बदल गया है ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि सिर मुड़ा और आदमी बदल गया, अभी तो नहीं, अभी तो दिल तो वैसा ही है। लेकिन जब हरि नाम का मधुरता उसके दिल में छूता है, या कृष्ण भक्ति का तरह तरह से मधुरता है, भगवान के विग्रह का दर्शन का मधुरता है, भगवान की सेवा का मधुरता, जब उसको दिल को छूता है फिर वो इससे मुक्त हो जाता है। एक्चुअली उसमें भक्त बन जाता है, भक्त के आचरण में है ही नहीं। भक्त तो दूसरे भक्त को देखता है, हमेशा सोचना चाहिए कैसे मैं सेवा करूं, कैसे उनका कृपा मिले, ये भक्त का लक्षण है। तो उसमें फिर जो पूरा वातावरण है वो वैकुंठ बन जाता है। ठीक है, ये दुर्वासा मुनि का पता नहीं अभी तक। कभी कभी क्या होता है, मूर्खों का पता नहीं चलता है रीजन क्या है, कभी कभी रीजन समझ आता है। जैसे कृष्ण जी एक एक लीला करती है तो 1000 रीजन होते हैं। ठीक है, महान भक्त भी कुछ करते हैं तो लोग सोचते हैं क्यों किया होगा ना। दुर्वासा मुनि का समझ नहीं आता इनको गुस्सा किस लिए है, कोई समझ नहीं आता। मृत्युदंड दे रहे अम्बरीश महाराज को, इसलिए उसको सांप का कंपेयर करेगा, बिकॉज सांप ये नहीं देखता है कि उसका अपराध क्या है, अपना दिखा देता है दांत, है ना। सांप को इसलिए कंपेयर करा गया, इसलिए बोला गया है भागवत में। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि यहाँ तो सांप को मारो, और भागवत में बोला गया है जब सांप और बिच्छू मरते हैं तो संत भी खुश हो जाते हैं। ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने बोला था। क्या श्लोक है? मोदयत साधु अपि वृषिक सर्प हत्या। एक बार ही प्रभुपाद जी अपने गुरु के आश्रम में थे, तो सडनली क्या हुआ, अंदर एक सांप आ गया, तो बहुत हलचल हो गई, लोग समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो बक्सेंद्र प्रभुपाद जी ऊपर थे, मारो सांप को, उन्होंने ऑर्डर दिया, लेकिन सांप को मार दिया। तो प्रभुपाद जी टेम्पल आए थे, उनको एक डाउट हो गया, भाई तो इतने महान संत हैं, एक दूसरे जीव की हत्या ऑर्डर कर दिया। तो उनको जब तो उन्होंने भागवत में श्लोका पढ़ा, उनको ठीक है, मोदेत साधुरपि वृषिक सर्प हत्या। ये तो अपने पिताजी को वो बोलते हैं, पिताजी के लिए बोलते हैं, किसको? नरसिंहदेव को। नरसिंहदेव आप तो बहुत अभी भी क्यों गुस्सा है, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अरे भाई, मेरे पिताजी जो एक सांप की तरह थे, बेमतलब में पूरे दुनिया को डंडे मार रहे थे, तो कभी भी किसी देवता को बुला के मारते थे। अरे आजा, एक देवता बुला, इंद्र, और 2 थप्पड़ मार जा, ऐसे। कभी वो उनके हिरण्यकशिपु ऐसा आतंक फैला दिया था, वो आँख हिलाता तो देवता कांपते थे, अब मरा मैं, अब मेरी पिटाई होगी आज, ऐसी हालत थी। तो सांप का स्थिति उसको ही बोला जाता है। दुर्वासा मुनि भी उसकी स्थिति में आ गए, सांप। ठीक है, तो सांप को जब पनिशमेंट मिलता है तो किसी को बुरा नहीं लगता, होता है ना। बच्चों ने मूवी देखते थे, और विलन को जब हीरो पिटा करता है वो बहुत खुश, सब लोग खुश होते हैं, मार और मार। नहीं, तो दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चल रहा है, उसको मृत्युदंड देने के लिए, किसी को बुरा नहीं लग रहा। शास्त्र बोल रहा है सांप मर, वो सांप। इतने महान भक्त को मृत्युदंड दिया उसने, किस मतलब के लिए? कुछ भी नहीं किया उसने। एकादशी का व्रत पालन करने के लिए उसने पानी पिया और उसकी हत्या करना चाहते उसने घमंड के कारण। मेरे, तुम फोकस हो या भगवान फोकस है? तुम अपना फोकस हो। दुर्वासा मुनि अपना सोच रहा है, मेरे पहलू। अरे बाबा, अंत में तो भगवान की सेवा करनी है ना, उसने तो भगवान के बारे में सोचा है ना। आप समझ रहे हैं ना, अगर भगवान सेंटर में रहेंगे, उसके सेंटर में होते तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए था। अरे वो तो कृष्ण के सुख के लिए एकादशी व्रत कर रहा था, वो पूर्ण कर दिया उसने, लेकिन वो अपना फोकस सोच रहा था। है, मेरे को आदर नहीं दिया, मेरे आने के पहले खा दिया, ये तो गलत हो गया, ये तो उसको कुछ तमीज नहीं है, ये क्या है, ये है, वो है, और आप मेरे से पहले क्या पानी पी ली। अरे बाबा, क्या अपराध किया तुमने, और इतना क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? तो कभी कभी तपस करने से आदमी को घमंड आ जाता है, और उस घमंड भक्त के लिए, भक्त को भी ध्यान रखना चाहिए कभी भी। इसलिए जो भी तपस करते हैं, हमेशा आदेश अनुसार, तो घमंड नहीं आएगा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना चाहिए, आदेश, समझ रहे? आदेश, हमको आदेश, हम 16 माला क्यों जप गए? मेरे को आदेश मिला है इसलिए कर रहा हूँ, कभी घमंड नहीं आएगा। मैं 16 माला करने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन आदेश मिला इसलिए कर रहा हूँ।
तो आपके नम्र होकर जप करोगे वो शुद्ध जप हो जाएगा। प्रभु जी बोलते हैं जब कृष्ण के आदेश से या शुद्ध भक्त के आदेश से कोई भी काम किया जाता है वो भी शुद्ध भक्ति हो जाता है। जैसे भगवान को भी निवेद्य करते हैं, तो हम तो शुद्ध भक्त है ही नहीं, लेकिन हम गुरु को, प्रभुपाद जी को याद करके भोग लगाते हैं, क्या होता है? वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्यों भाई? भगवान तो खाली शुद्ध भक्ति स्वीकार करते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनके आदेश के अनुसार चल रहे हैं। हमेशा मेडिटेशन ऐसा रहने का, देखो मेरे को तो ऑफर करना नहीं आता, न तो मेरे को कुछ प्रेम है, लेकिन मेरे गुरु ने बोला है कि आपको निवृत्ति करना है, मैं उनकी आदेश के अनुसार आपको दे रहा हूँ, तो आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। कोई भी सेवा हमेशा अहंकार, क्योंकि ये एक्चुअली देखो ऐसा है, दुर्वासा मुनि जैसे तो काम हम नहीं करेंगे, ये तो पागलपन है, लेकिन कुछ हद तक हम भी ऐसा कभी कभी पागल हो जाते हैं, नहीं कुछ हद तक। अब ऐसा तो नहीं है हम परमहंस लोग हैं, हमको भी इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी दुनिया में कैसे अब इस घमंड से बच सकते हैं? दुनिया में देखिए तरह तरह से आदर मिलता है। अब आप साधु के ड्रेस में ही जाते हैं तो लोग नमस्कार करते हैं, आपके पैर छूते हैं। गांव में तो लोग और भी ज़्यादा करते हैं। बंगाल में तो मैं लोग लेटते हैं जहाँ चल रहे हो उसके पीछे, है ना, वो आपकी धूली लेके सिरे में लगा, बहुत आदर देते हैं। तरह तरह के आदर है, समाज पे डिपेंड करता है। साधुओं का जगह जगह पे आदर है, ठीक है। उस आदर को प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब इमीडिएटली कोई भी आपको नमस्कार करना है, इमीडिएटली उस समय गुरु परंपरा याद करना चाहिए। अपने गुरु को याद करिए, पूरी गुरु परंपरा याद करिए और हट जाइए। आदर को जाने दीजिए, आप बीच में नहीं लीजिए उसको, करेक्ट। लेकिन अगर आपने उसको खा लिया, बस गए, वो आपको फिर घमंड बना देगा। आप समझ रहे हैं? कभी भी ये नहीं, भक्त को कभी नहीं समझना चाहिए मैं आदर के लायक हूँ, मैं कोई आदर के लायक नहीं। तो आदर तो आता रहेगा, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करिए। ना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आप गुरु परंपरा के लिए तो आदर लेना ही है ना। और कोई नमस्कार करना नहीं करा, अरे बाबा, तो लगेगा कि तुम नमस्कार के, हम तो ये नमस्कार के योग नहीं है, लेकिन ये गुरु परंपरा योग है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं, आई टेक ग्रेट प्राइड इन रिप्रेजेंटिंग द गॉड या वैष्णव संप्रदाय। हमको बहुत खुशी है इतनी परंपरा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे ना? कृष्ण बोलते हैं क्या, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमको थोड़ी कृष्ण उपदेश मालूम चला, हमको तो गुरु परंपरा से मालूम चला है, तो उसको रिपीट कर रहे हैं। तो जब कोई आदर देता है हमेशा ध्यान रखने का। प्रभुपाद जी कितनी बारी लिखे ना, मेरे को कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, मेरा यही क्रेडिट है कि मैंने अपने गुरु ने जो बोला मैंने वही रिपीट किया, जो क्रेडिट है मेरे गुरु को दे दो। हमेशा कितनी बारी लिखा है नहीं। और गुरु का भी पूरा नाम दो, परमहंस अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, उनको क्रेडिट दे दो। भगवद गीता में ऐसा नहीं, भक्ति प्रभुपाद पूरा नाम लंबा, उनको क्रेडिट दे दो। ये हमको भावना अपने दिल में कल्टिवेट करना चाहिए, तो इस घमंड से बचेंगे। नहीं तो ये घमंड हमारा भक्ति को, घमंड की वजह से अहंकार आ जाएगा, अहंकार से अपराध हो जाएंगे, अपराध हो गए भक्ति नष्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो शांति चले जाएगी, भक्ति की खुशी, सिंप्लिसिटी चले जाएगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रिंसिपल हमको कल्टिवेट कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो चलो कनिष्ठ भक्त हैं अब तो अहंकार रहेगा, नहीं, अभी साधना है। उत्तम भक्त को ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कनिष्ठ भक्त को साधना के रूप में सब कुछ करना चाहिए। उसका लाइफ हमेशा साधना के रूप में भगवान का सेवा करता, हमेशा साधना रहता। तो इधर वो दुर्वासा मुनि तो पहुंचे हैं, किधर पहुंचे हैं? दुर्वासा मुनि तो पहुंचे हैं आपके ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, भाई हम तुमको क्या बचा सकते हैं? जब भगवान अपनी पलक झपकते हैं एक, उतनी ही उनको एफर्ट चाहिए, एक अपनी आंख को थोड़ा हल्का हिलाना, उतने उनके एफर्ट से सारा ब्रह्मांड सारे जीवों के साथ नष्ट हो जाता है। इतने सर्वशक्तिमान भगवान, और तुम मेरे को बोल रहे हो उनके हथियार से युद्ध करो। सुदर्शन की भी बहुत महिमा है, सुदर्शन पे ही बहुत महिमा बोली जा सकती है कि सुदर्शन चक्र काल चक्र से फर्क नहीं है, उसमें उतना ही शक्ति है। कभी कभी सुदर्शन चक्र को काल चक्र के रूप में ही माना जाता है, उसको रोक नहीं सकता कोई। हम कैसे रोक सकते हैं? हम सब बधे हुए हैं, वो तो भगवान की शक्ति है, हम तुम उनसे क्या बोल रहे हो? मतलब उसको आइडिया दे रहे हैं मैं तो ब्रह्मा हूं भाई, मैं पूरे इस विश्व का नाथ हूं, लेकिन मैं भगवान से थोड़ी टक्कर लूं। ऐसा मूर्ख नहीं हो तेरी तरह, करेक्ट।
उनके भक्त से तो टक्कर ले लिया, किस मतलब है, मतलब उसको कोई दया नहीं दी, भाई मैं तेरे को मदद नहीं कर सकता क्या। और शिव जी के पास पहुंच गया। अब शिव जी की भी बोले नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा हम सब उनके आदेश का पालन करते रहते हैं, हम उससे थोड़े युद्ध करेंगे। उनके सुदर्शन चक्र से युद्ध करना मतलब भगवान से युद्ध करना, उन्हीं के हथियार से युद्ध हम नहीं करेंगे। और शिव जी बताते हैं ऐसा करो, तुम उधर चले जाओ, विष्णु के पास चले जाओ, उन्हीं का हथियार है, उनसे माफी मांगो, हम लोग तुमको नहीं रोक सकते, इस हथियार से नहीं रोक सकते। सो आप देखिए बड़े बड़े देवता लोग भगवान से के आदेश को उल्लंघन नहीं करना चाहते, और हम लोग की हिम्मत देखो, भगवान के आदेश को क्या देखो। मतलब प्रभुपाद जी हंसते थे कभी कभी, जैसे भागवत में ऐसी चीज होती, प्रभुपाद जी बोलते देख ब्रह्मा शिव भी उनके अपना सिर उनके चरण में डाल रहे हैं, तू क्यों घमंड से खड़ा है, तू भी ठीक है। जैसे कृष्ण जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो नमस्कार करें, शिव जी हैं वो नमस्कार, अरे तू भी नमस्कार करना, तू कितना बड़ा हो गया है, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा शिव की शक्ति हम सोच भी नहीं सकते, जब वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो हमें किस चीज की हिचक है। तो इधर ये भी क्लियर हो जाता है, लोगों को, बहुत लोगों को डाउट है, वो सोचते हैं त्रिमूर्ति है हमारा हिंदू धर्म, त्रिमूर्ति, आजकल ऐसा लोग बोलते हैं, तीन भगवान। कहा यार तीन भगवान, दोनों तो उनके दास है, दोनों तो उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं, वो थोड़ी भगवान है? ब्रह्मा विष्णु कभी भगवान शास्त्र में नहीं बोला गया, लेकिन लोग ऐसा समझ लेते हैं, गलत समझ जाते हैं। तो देखिए इस लीला में ये भी क्लियर हो गया कि असली मालिक कौन है, भगवान है, उनकी इच्छा कोई नहीं रोक सकता। कोई उनकी इच्छा के सामने नहीं आता। उनकी इच्छा था कि दुर्वासा मुनि को पनिशमेंट हो, तो कोई देवता सामने नहीं है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, अभी मारे कृष्णा राखे के, उनका इसको करो पनिश, दंड दो इसको, क्योंकि भगवान सुदर्शन भगवान का दास है, वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं चलेगा। भगवान की इच्छा समझ आ गई थी उसको, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा को जो उसकी इच्छा कुछ नहीं, भगवान की सेवा लगा है, भक्तों की सेवा कर, भक्तों की सुरक्षा कर रहा है। कौन थे या प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन बता दो सबको मेरे भक्त की रक्षा हमेशा होगी, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। तो ये लीला में ये भी हो गया, उसको सुरक्षा हो रही है, सुदर्शन घूम रहा है, तो भगवान का सुदर्शन हमेशा भक्तों की सुरक्षा करता है। हाँ, तो ये भी समझ सकते हैं कि इस बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान से कभी भी सामने बहुत अपने को दास के रूप में रखते हैं। तो हमको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हम कितने बड़े हो गए भाई भगवान के दास बने। तो लेकिन जो भगवान को सरेंडर करना, शरणागति करना एक प्रक्रिया है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसलिए भगवत गीता में लिखा है, ये शांतो अंधगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम त्रिनावर्ता। जब तक दिल पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होगा, हम भगवान की शरण नहीं ले सकते। तो इसलिए जैसे ही हमारा साधना से मन शुद्ध होता है, जैसे भगवान की सेवा से मन शुद्ध होता है, तब आपको शरणागति आती है। भगवान के शरण में जाना ये तो एडवांसमेंट भी है ना, ये सेंटिमेंट नहीं है। अब हम भगवान के चरण स्वीकार करें, सेंटिमेंट होता तो छोड़ देते ना। जैसे आजकल लड़का लड़की बिना शादी के एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, फिर 2 दिन बाद छोड़ दिया, है ना, 2 दिन मिले 2 दिन बाद छोड़ दिया। नॉर्मल तो आता नहीं है, एक्टर एक्ट्रेसेस का हर दिन न्यूज में आता है, छोड़ दिया कुत्ते बिल्ली की तरह, है ना, आजकल तो यही है। तो लेकिन क्यों, उसका क्यों संकल्प विकल्प, मन का तो वही रीजन है ना। अच्छा लगा, कल अच्छा नहीं लगा, अरे ये कपड़ा से अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मन विचलित रहता है, संकल्प विकल्प। प्रभुपाद जी जो अमेरिका मूवमेंट शुरू करे थे, ये चीज देख के उनको बहुत दुखी था। जब भी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं देखते थे मंदिर में, नहीं आज ऐसा कर, प्रभुपाद जी ये सब बंद करो, ये तुम लोगों की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, हर दिन तोड़ो, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग लोग बड़े अलाइन करके डायनामाइट लगा के तोड़ते हैं, फिर दोबारा बनाते, पैसा है ना बर्बाद करने के लिए। बहुत धनी राज्य से समझे, बहुत धन होता तो लोग ऐसे ही करते, बिल्डिंग बनाई अच्छी नहीं लगी तोड़ देते फिर बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी देखे ये तोड़ फोड़ दोबारा बनाओ, तोड़ फोड़ दोबारा, ये सब बंद करो। बहुत बारी मायापुर में भी डांटा लोगों को, बोले प्रभुपाद जी ये बिल्डिंग को थोड़ा तोड़ के इधर से, तुम ये तोड़ फोड़ का काम बंद करो, ये पैसा बर्बाद नहीं करने का, बना लिया इसको तोड़ के फिर इधर से लगा देते हैं, फिर तोड़ देंगे, ये संकल्प विकल्प नहीं। ये आप समझ रहे हैं ना, संकल्प विकल्प हमारा आदत बन जाती है।
तो मन के प्लेटफॉर्म में हमेशा आदमी संकल्प विकल्प करता है, तो वो तो परमानेंट नहीं है। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं है, हर दिन भगवान के जाप कर रहे हैं, ये मन की स्थिति क्यों नहीं है, हमको खुद समझना चाहिए। कभी कभी लगता है कि मेरी भक्ति कहाँ पहुंची है। अगर आप एक दिन जप करते हो, एक दिन यहाँ मन नहीं कर रहा है, अब तो तुम अभी मेंटल प्लेटफॉर्म में ही हो, आगे नहीं जा पाए। लेकिन जब लगता है ये तो मेरे को करना है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, अभी आप मन के ऊपर जा चुके हो। इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। तो आपको कभी कभी अपना श्वास भी ठीक नहीं है, आदमी साधना जरूर करता है, चलो क्यों, बिकॉज मेरा ड्यूटी है। उसके ऊपर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में तो फिर और आगे, उसमें तो आदमी को आनंद शुरू हो जाता है, वो छोड़ ही नहीं सकता। तो तरह तरह से लोग भगवान के शरण लेते हैं, लेकिन भगवान से कॉम्पीट करना, ये आदत हमको छोड़ना है। ठीक है, प्रभु जी बोलते हैं भगवत गीता में भी, ये मेरा दुश्मन है, मर गया, मैं सबसे धनवान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। एक्चुअली हमारा मन जाता नहीं जाता ऐसा, हर आदमी के दुश्मन तो होते ही हैं। देखो मेरी सुनता नहीं था, खत्म हो गया, वो भी सड़क रोड में बैठा हो, ये देखो वो भी नहीं सुनता था, वो देखो पागल हो गया। लोग ऐसा सोचते हैं, मैं और देखो मैं शरण दूंगा सबको, मैं सर्वशक्तिमान हूं, ये दानव के विचार है। और ये दानवीय विचार अभी भी हमारे दिल में है। आई थिंक ये इसके मन में भी ऐसे दानवीय विचार आए दुर्वासा मुनि के, देखो मेरे सुनता नहीं था, अब देख पनिशमेंट तेरा, देख तुम भी डर जाओ। कभी कभी दानव लोग ऐसा करते हैं, लोगों को डराने के लिए एक को मार देते हैं, तो बाकी लोग सब डर जाते हैं। उसको बोलते हैं मंकी ऑन द स्टिक। जब बंदर आपके खेत में अटैक करते हैं तो किसान क्या करता है, एक को मार देता है या एक को टांग देता है, तो बाकी बंदर उसको देख के भाग जाते हैं, है ना, मंकी ऑन द स्टिक बोला जाता है। तो सिमिलरली दानव लोग भी ऐसा करते हैं, जैसे दुर्वासा मुनि अब ऐसा आतंक फैलाएंगे तो सब लोग उनको देख के डर, अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, श्राप क्या देने तो मार देता है, तो लोग डर जाएंगे आए तो, ये क्या तुम कर रहे हो, तुम्हें कोई शक्ति मिली है, भगवान ने तुम्हें इतने तपस करके तुम्हें इतनी सिद्धि मिली है, ये आतंक फैलाने के लिए, ऐसे भक्तों को डराने के लिए। तो भगवान का तो मृत्युदंड उसको देने का निश्चय करेक्ट ही था, करेक्ट, कोई गलती नहीं है उसमें। क्योंकि लेकिन तब भी भगवान से माफी मांगी उसने, और अम्बरीश महाराज ने माफ कर दिया, तो भगवान ने उसको माफ कर दिया। अंत में भगवान को किसी से वैर नहीं है उसके, लेकिन आतंक बंद करना था उसका। तो ठीक है, वो आतंक दो तरह से बंद हो सकता है, या तो मार के बंद हो सकता है, या आदमी सुधर जाए तब भी आतंक बंद हो जाता है ना। चैतन्य महाप्रभु जनरली दूसरा तरीका अपनाते हैं। एक तरीका लोग क्या सोचते हैं, मार दो, तो चैतन्य महाप्रभु का तरीका है कि दिल में दानव हो उसको मार दो। तो किसी तरह से इतना तो था, वो भगवान के पास गया, क्योंकि शिव जी के पास गया तो महान भक्त, उन्होंने आइडिया दिया उसको, तो भगवान के पास ही चले जाए। वहां आया और भगवान ने उनको समझाया, देखो मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं तेरे को सुरक्षा नहीं कर सकता, तो उनसे अपराध माफ करो। और उसने इतना सुना, तो उसको श्रवण करने की वजह से जो चीज वो मृत्यु से सीखता है वो श्रवण से सीख गया, और उसका दिल का परिवर्तन हो गया। तो सिमिलरली हम भी अगर नाम स्मरण करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो हम भी बिना ऐसे मृत्यु दंड पाए बहुत आसानी से सीख सकते हैं भगवत भक्ति और प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, भागवतम की। यार ये क्या है, ये बंद है, बैटरी नहीं है। हाँ, तो फिर बंद क्यों हुआ? नहीं, वो तो परसों डाला, नरसों डाला, तरसों डाला, नहीं नहीं नहीं, यार हमने ऑन तो किया था ना, ऑन किया था हमने। देखो 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 देखो, बैटरी बहुत जल्दी जा रहा है इसमें, एक डंडा है वो चला गया था, है ना, जल्दी बदल देंगे बैटरी। और इसका क्या, हरे कृष्ण। प्रत्याख्यात विरिंचेदा, 3 मिनट का रिकॉर्डिंग। इसमें इसमें दूसरे में, इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके ऑडियो में, ऑडेसिटी में। हरे कृष्ण प्रीति।
हरे कृष्ण गुरु जी। कैसा चल रहा है? सब ठीक है? आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण।